Good morning, students. Today we will discuss blood portion, that is the main portion of the transporting tissue, transporting system, and ending portion of the blood. We should learn that there are two kind of fluid connective tissue. Connective tissue, fluid connective tissue. अब जो you know well connective tissue चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने. In the tissue chapter, you have learnt there are two some of the component materials, composition, constituents you can say, some of the cells, and another is the matrix. The matrix in case of the blood and lymph, in case of blood and lymph, the matrix is in liquid condition. So these are known as fluid connective tissue. You know well, one another type of connective tissue, that is the solid connective tissue. Solid connective tissue in which matrix is solid. Matrix is solid, bone and cartilage. In case of the bone and cartilage, the connective tissue is the solid connective tissue. So matrix is solid. So that's why solid connective tissue. Now we are going to discuss blood. As we start to discuss this blood, we should learn the blood is a fluid connective tissue. Blood is a fluid connective tissue. Right? अपने आप को म्यूट कर लो बच्चों. Blood is a fluid connective tissue. Number one. Number two. Now we going to discuss composition of the blood. As we come to discuss the composition of blood, there are two parts. Number one part of the blood is the blood plasma. Blood plasma is the liquid part of the blood. Liquid part of blood. This is the liquid part. Liquid part of blood is the blood plasma. And second one, solid part. And the solid part, corpuscles. Blood corpuscles. Corpuscles, you can say also blood cells, blood corpuscles. Right? So, try to understand these blood plasma. Blood plasma, it form about 55% of the blood. कितना पार्ट फॉर्म करती है बच्चों? 55%. It form the 55% part of the blood. Blood corpuscles, it produce about 45% part of the blood. 45% part blood corpuscles, 55% part of the blood plasma, 55% part of the blood formed by the blood plasma. Now we are going to discuss constitution of the blood plasma. तो बच्चों पहले हम लोग ब्लड प्लाज्मा से पढ़े थे कि इस ब्लड प्लाज्मा की क्या कंडीशन है. So look here. In case of the blood plasma, इस blood plasma में, in case of the blood plasma, 90 to 92%, 90 से लेकर के 92%, देख रहा क्लियर है. 90 से लेकर के 92% part of the blood plasma, it is produced by the water. Water 90 to 92%. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन. In case of competitions also, 90 से लेकर के 92% part of blood plasma is the water. ठीक है. अब बात आती है बच्चों यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिमेन जो बच गया. अब यहाँ पर 6 to 8%,
6 to 8% proteins. Proteins form the 6 to 8% part of the blood plasma. 6 to 8% part of the blood plasma formed by the proteins. ठीक है. अब ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? अब बच्चों प्रोटीन, यू नो वेल, प्रोटीन इज द body building material, body building food. Not only it produces the blood plasma, but also the protein also important for the formation of muscles. Collagen protein, you have learned in tissue chapter. Collagen protein to binding different cells. To binding different cells, collagen protein are there. But in case of the blood plasma, which proteins, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, देर आर अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स, बट बेसिकली अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं तो हम लोग कहेंगे देर आर 3 काइंड ऑफ दी प्रोटीन्स आर देयर. बेसिकली 3 काइंड ऑफ दी प्रोटीन्स दिख रहा है. तो ये 3 टाइप के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 दिख जाएगा, कोई कैमरा इधर घुमा दीजिए थोड़ा सा, अब कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक बार चेक कर लो. यस. सो नंबर 1 प्रोटीन इज दी albumin. Number 1 protein is the albumin. Second protein globulin. Albumin protein, globulin. और third one fibrinogen. Third protein is the fibrinogen. There are 3 kind of the proteins. Visibility कोई प्रॉब्लम है? नहीं. So there are 3 kind of the proteins: albumin, globulin and fibrinogen. अब बच्चों इन प्रोटीन्स के फंक्शंस भी इमीडिएटली लर्न कर लिया जाए. सो एल्बुमिन बच्चों क्या होता है? दी ब्लड, आर ब्लड हैविंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन. हमारे ब्लड की भी कॉन्सेंट्रेशन होती है, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होती है. अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, गाढ़ा हो गया तो क्लोट हो, तो गाढ़ा हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. जहां देखो वहीं पर जाकर के जम जाएगा. लिक्विड हो गया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया तो इट ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ब्लड की एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा. जैसे हमारा वाटर होता है, वाटर ना डाइल्यूट, वाटर इज अ डाइल्यूट, लेकिन अगर वाटर के अंदर हम लोग शुगर मिला दें या सोल्ट मिला दें, इट बिकम कॉन्सेंट्रेट. ये कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है. ठीक वैसे ही यहाँ पर जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना, तो इस कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने को कौन काम करता है बच्चों? एल्बुमिन. एल्बुमिन responsible for maintenance of osmotic concentration. Maintenance of osmotic concentration. So which protein is responsible for osmotic concentration? Which protein? Sorry. Which protein is responsible for maintenance of osmotic concentration? Yes, albumin. Albumin protein is responsible for maintenance of osmotic concentration. इसको नीचे रख देता हूँ तो तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो maintenance of osmotic concentration, which protein is responsible? Yes, which is responsible? Albumin. Albumin is responsible for maintenance of osmotic concentration.
फिर बात आती है बच्चों ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन का काम क्या है? ग्लोबुलिन इज एसोसिएटेड विद दी, एक मिनट, बच्चों यू नो वेल एंटीबॉडीज, यू नो वेल अबाउट दी एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज होती क्या क्या है? Antibodies are a special type of protein. Antibodies are a special type of protein which are present in the blood plasma. कहाँ होती है? Blood plasma. A special type of protein. And which is the special type of protein? Which protein is responsible for formation of antibodies? Yes, globulin. तो globulin के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। So globulin is associated with the, एक्चुअली क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन इज ऑफ 3 टाइप्स। इनमें से एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन आल्सो नोन एज अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो गामा ग्लोबुलिन आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। सो इट इज ग्लोबुलिन, इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। और एंटीबॉडी फॉर्मेशन वी कैन से इम्यूनाइजेशन। हम लोग रनिंग में अपनी लैंग्वेज में क्या करेंगे बच्चों? इम्यूनाइजेशन। सो ग्लोबुलिन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद द इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी। एल्बुमिन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अब बच्चों क्या होता है, यू गेट इंजर्ड, चल रहे हैं इंजर्ड हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। When we get injured, there is flow of blood, loss of blood from the body, bleeding. To the process of prevention of the flowing bleeding, excessive bleeding, और इस एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने का काम ही कौन करता है बच्चों? एक प्रोटीन, दिस इज नोन एज फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद द स्टॉप ब्लीडिंग, और स्टॉप ब्लीडिंग इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कोएगुलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड कोएगुलेशन। तो यहां लिख देता हूं मैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज एसोसिएटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग को ही क्या कहते हैं? ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग आल्सो नोन एज कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन। ये हो गया बच्चों, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन ओवर। इसका चाहो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं हटा दूं इस प्रोटीन को, तो वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गए, रेस्ट portion, and rest portion about 1% part, 1 to 2 1%, 1 to 2%, 1 to 2% part, rest of the proteins, rest of the materials which are present in the blood plasma। अब ब्लड प्लाज्मा में बाकी चीजें क्या बचेंगी बच्चों? बाकी चीजें क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा? टू कैरी दी ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, most of the oxygen carried by the hemoglobin, some of the oxygen carried by blood plasma, डिजोल होकर चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, दिस ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स अ नंबर ऑफ, नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स कैसे? आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन अब अमाइनो एसिड्स उनको कैरी करने का काम है, ग्लूकोज है उसको कैरी करने का काम है। तो यहाँ पर आफ्टर डाइजेशन जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो सबका सब कहाँ पर आ जाएगा बच्चों? ब्लड प्लाज्मा। इट इज कैरीड बाय द ब्लड प्लाज्मा। तो क्या क्या हो गया? शुगर हो गई, ग्लूकोज,
सेकंड हो गया हमारे पास में फैटी एसिड, फैट का डिपोजिशन, फैट का हुआ फैटी एसिड। नेक्स्ट वन प्रोटीन्स हुआ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्या हो गई विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वो विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन्स। इसके अलावा हार्मोन्स, these hormones, जो भी हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स विच कैरिड बाय द ब्लड, कौन कैरी करेगा? ब्लड प्लाज्मा। तो न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और क्या हो गया एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब बच्चों ये एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये तभी तो हम लोग कहते हैं हमारे ब्लड शुगर मेंटेन रहती है। और कितनी मेंटेन रहती है? अबाउट 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। कितनी होती है? 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर इससे ज्यादा होगा तो ब्लड शुगर लो हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया, चक्कर आने लग जाता है। जब भूख लगती है, ब्लड शुगर लेवल हुआ, ब्लड शुगर लेवल डाउन हुआ, भूख लगने लगती है। आवर बॉडी रिक्वायर फूड। तो excretory waste are also present over here, and excretory waste urea, uric acid, uric acid। ये हो गया बच्चों हमारा ब्लड प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट खत्म। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सो ब्लड प्लाज्मा इट फॉर्म 55% पार्ट ऑफ द ब्लड, 90 to 90%, 92% water, protein 6 to 8%, albumin, globulin, fibrinogen। Albumin protein is responsible for maintenance of osmotic concentration of the blood. Globulin is associated with the immunization, or you can say antibodies formation. Fibrinogen, blood clotting. A small amount of blood plasma also consists of a number of nutrients, sugar, fatty acids, amino acids, vitamins, hormones, excretory waste. Along with these, some amount of carbon dioxide and oxygen also present over here. Now, next portion, that is the blood corpuscles. तो यहाँ लिखते हैं ब्लड corpuscles. Blood corpuscles, there are three kind of the blood corpuscles are present in our blood. How many types of blood corpuscles? Three types of blood corpuscles are present in our blood. Number one, acidophils. Nowadays, acidophils are also known as blood corpuscles are of three types. Number one, RBCs. Second one, WBCs. Third one, platelets. RBCs, WBCs and platelets. काम खत्म। नंबर वन, नंबर देखो, RBC, लार्जेस्ट नंबर कितनी? 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, एक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितनी? 5 से 5.5 मिलियन। बात आती है प्लेटलेट्स की, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। तो 5000 to 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट। नाउ प्लेटलेट्स 1.5 to 1.5 lakhs to 3.5 lakhs per cubic millimeter,
1.5 to 3.5. अब बताओ विच इज द लार्जेस्ट इन नंबर, आरबीसीज, विच इज द लीस्ट इन नंबर, डब्ल्यूबीसीज। बच्चों बात आती है व्हाट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन, what is the site of formation? So RBCs are found in the bone marrow. RBCs are found in the red bone marrow. You know when bone marrow एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हमारी स्टेम सेल्स, और जो स्टेम सेल्स होती हैं उनकी उनका एक स्पेशल टाइप होता है, एंड दिस स्पेशल टाइप इज नोन एज, जिसका न्यूक्लियस बड़ी साइज का होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। These megakaryocytes, when broken down, they produce the platelets. ये जब टूट जाती हैं तो क्या बनाती हैं बच्चों, प्लेटलेट्स बनाती हैं। अब प्लेटलेट्स का काम, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है बच्चों, यहीं से देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स आर एसोसिएटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग, these are associated with the blood clotting, blood clotting, blood coagulation, you can say। RBCs, RBCs रेड कलर, RBCs नाम भी क्या है बच्चों, रेड कलर। रेड कलर क्या कहते हैं इनको, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। RBCs are also known as red blood corpuscles। Red blood corpuscles other name erythrocytes, क्या कहते हैं बच्चों इनको, erythrocytes। RBCs are also known as erythrocytes, क्या कहेंगे, erythrocytes। WBCs are known as leukocytes because these are colorless, leuko means colorless, white, जिसका कोई कलर नहीं होता, white, erythro red color, erythrocytes, leukocytes, and platelets are also known as thrombocytes, क्या कहते हैं बच्चों प्लेटलेट्स को, थ्रोम्बोसाइट्स। याद होगा ना, यू हैव लर्न इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। बात समझ में आ गई। अब बच्चों जो आरबीसी होती है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, 120 डेज, अबाउट 4 मंथ, 3 to 4 मंथ। सबसे कम लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन किसका होता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज हैविंग लीस्ट लाइफ स्पैन। एक्चुअली प्लेटलेट्स, दीज आर नॉट सेल्स, ये सेल्स होती नहीं है, दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ दी सेल्स, तो इनका लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन का मतलब नहीं है। दीज आर नॉट सेल्स, दीज आर एक्चुअली फ्रेगमेंट्स ऑफ दी सेल्स। गॉट इट। अब बच्चों बात आती है, ये भी कुछ बात सुन एक बार वापस रिवाइज करते हैं, जितने पॉइंट याद हुए याद कर लो, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बाकी बातें अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगी। सो नंबर 1, नंबर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, लीस्ट नंबर 5000 to 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, प्लेटलेट्स 1.5 lakhs to 3.5 lakhs cubic per millimeter। Formation, these are formed by the red bone marrow, these are formed by the megakaryocytes। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो में कुछ स्पेशल सेल्स हैं। बोन मेरो एक्चुअली क्या है बच्चों, there are some stem cells are present. Stem cells, these cells which can form any kind of the cells of the body, these are known as stem cells, megakaryocytes। फंक्शन, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन देख लिया, ब्लड क्लॉटिंग। आरबीसी इज मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन of oxygen, it is associated with the transportation of oxygen।
Now WBCs provide protection. WBCs are associated with the provide protection. It provide protection provide करना. तो ये हो गया बच्चों RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ तक? एनी डाउट? चलो आज का तुम लोगों को इसको बंद करते हैं और